December 2023 question paper I am discussing today. From the following particulars, this is the theory you have to learn. What is part A? Answer any 5. Each carry 4 marks. Out of 8 questions, any 5 you have to do in the short. So what is revaluation account? You have to learn the theory, purchase consideration. What are the methods to be calculated in purchase consideration? Now I am doing this problem number 4. From the following particulars, ascertain the change in inventory. So in change in inventory, it has given in the question raw material purchase, work in progress, finished goods, opening, and on 1/4 work in progress and 1/4/2020 finished goods. Raw material and finished goods it has given, work in progress, and this is closing it has given. So computation of change in inventory, opening stock, work in changes, opening stock we have to take first work in progress 20,000 and closing work in progress we have to take 25,000. It's clear? First we are taking opening work in progress, then closing work in progress. From there we have adding finished goods. So finished goods opening is 1 lakh rupees. So total we are getting 1,20,000. And finished goods closing we got 75,000. So 1 lakh. Therefore the total change in inventory is decreased 20,000. So just if work in progress and finished goods we have to consider, we have to add, and we have to see the difference. So 20,000 difference we are getting. Raw material are not considered as they are taken under the cost of material consumed. It's clear? Raw material we have to ignore in this. If you get in the short this type of problem, you have to ignore raw material. Raw material को ignore करना है. Only work in progress, opening, work in progress, closing को लेना है. And finished goods opening, finished goods closing, दोनों को total करके जो भी difference आ रहा, inventory decrease हो रही बोल के अपने को लिखना है. Now next for the following, calculate the value of goods at 3-year purchase of super profit. Value of goodwill we have to find. Average capital employed दे दी अपने को already यहाँ 10,000. This is 1 lakh, 1 lakh. And net profit for the past 3 years it has given 3-year profits. Rate of return expected 10% on capital employed it has given. Fair remuneration to the organizer 20,000 per annum it has given. So value of goodwill formula we have super profit into number of years. पहले value of goodwill का formula क्या है? Super profit into number of years. अब super profit मालूम करने के लिए अपने को formula है average profit adjusted minus normal profit. Average profit adjusted के लिए average profit में से fair remuneration को minus करना है. It's clear? एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 3 इयर्स का अपने को जो टोटल प्रॉफिट दिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करे तो अपने को एवरेज प्रॉफिट आ जाता. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट में से फेयर रिम्यूनरेशन जो है ना वो माइनस करे तो अपने को एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड आता. उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपने को क्वेश्चन में दे दिया. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे दिए एंड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिए. 10 lakhs into 10 by 100. So 1 lakh we are getting normal profit. It's clear? Everything is given to us. Just formula याद रहना है अपने को. Super profit into number of years से करना है. Number of years 3 years दे दिए. Super profit के लिए पहले अपने को क्या होना है फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट होना है, नॉर्मल प्रॉफिट, दो चीजें होना है. एवरेज प्रॉफिट कैसा मालूम करें अपन? टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स. अगर फेयर रेम्यूनरेशन दिए तो माइनस करना है. ठीक है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसा आता? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न जो भी रहता. सो 1 लाख. सुपर प्रॉफिट जस्ट इसमें अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन. एवरेज प्रॉफिट 1,25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख. सो सुपर प्रॉफिट 25,000. गुडविल का फॉर्मूला अपन पहले लिख दिए ना. सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स. सुपर प्रॉफिट 25,000 वी गॉट इट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स 3 years इज गिवन इन द क्वेश्चन. 75,000 गुडविल. इट्स क्लियर नो? Ascertain the yield value of share of Swadeshi Limited. Yield value of share we have to find out. Average rate of dividend declared by the Swadeshi Limited 20%. Normal rate dividend decreased by the company engaged in similar business 15%. Paid up value of share of the company is ₹10. So yield value share का formula क्या है? You have to learn the formulas, then only you can pass the exam. So expected rate is average
rate by normal rate into paid up value of share. So 20% it has given, no, divided by normal rate 15% into paid up value of share is 10. So 13.3 we are getting yield value of each share. It's so easy. 4 marks you will get for that. Now next we have difference between sacrificing ratio and gaining ratio. This theory you learn. State the basis for a division of the following expenses: business pre-incorporation and post-incorporation. सैलरी टू वर्किंग मैनेजर, यहाँ पर अपने को सैलरी टू वर्किंग मैनेजर, रेंट ऑन बिल्डिंग, डायरेक्टर फी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये कैसा प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में करना है अपने को, दैट यू हैव टू सी फॉर दैट. नाउ लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर पार्ट बी. 5 questions each carry 12 marks. For total 60 marks you will get from part B. So answer all the questions. Internal choice will be there, no, 9 or in 9A or B, in 10A or B, like that. So this time compulsory maybe you will get admission of the partner. Last time the paper was so tough, unexpected theory questions were asked, but now this time you get the confidence that you will pass if you practice the problems. You may get it. The admission of the partnership, every time it has asked, but last year it has asked theory, so most of the students were failed and did not attempt the paper properly. But here now you practice it. The following is the balance sheet. The following is the balance sheet of X and Y on 31st March. Z was admitted. So admission of the partner. This is the problem based on admission of the partner. Balance sheet it has given, and 3:2 the profit sharing ratio है लोगों का. रिवैल्यूएशन एसेट, लैंडेड बिल्डिंग 18,000, स्टॉक 16,000. रिवैल्यूएशन का रूल क्या है? कुछ भी प्रॉब्लम मान दो, एडमिशन ऑफ द पार्टनर रहने दो आपको या रिटायरमेंट रहने दो, रिवैल्यूएशन का फर्स्ट रूल याद रहना आपको कि रिवैल्यूएशन में एसेट्स जो है सो डिक्रीज हुए तो डेबिट साइड में लेते, एसेट्स इंक्रीज हुए तो क्रेडिट साइड में लेते. सो एनी चैप्टर का जो भी की पॉइंट है वो पॉइंट को आप माइंड में रखना, कैसा भी पेपर आन दो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते. सो डोंट लर्न दैट दिस ओनली विल कम इन दिस प्रॉब्लम अदर थिंग्स. नो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट वेदर इट इज एसेट और लायबिलिटी. एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लेना है, एसेट अगर इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट में लेना है. ठीक है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रहा तो डेबिट में, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट में. ये आपको पॉइंट्स याद रहना है. सो अपने को यहाँ पर एसेट्स जो है एडमिशन में एडजस्टमेंट में दे दिए 18,000 एंड स्टॉक 16,000. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग प्रीवियसली 8,000 था, अब एडजस्टमेंट में 18,000, तो इंक्रीज हो रहा तो आपको क्रेडिट साइड में लेने का है. स्टॉक भी जो है सो पहले बैलेंस शीट में जो है स्टॉक की वैल्यू 12,000 थी, नाउ दे आर मेकिंग इट एट 16,000, इंक्रीज हो रहा, क्रेडिट में लेना है 4,000. जितना इंक्रीज हो रहा डिफरेंस यू हैव टू टेक इट हियर. गॉट इट. रिवैल्यूएशन के थ्रू द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 2,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 4,000 था पहले, अब 2,000, तो लायबिलिटी को क्या कर रहे वो लोग, डिक्रीज कर दे रहे. इट हैज नॉट टेकन हियर. द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड हैज डिटरमाइंड एट ₹2,000. नेक्स्ट, ब्रॉट इज एन गुडविल 10,000. It was further cash make his capital 20% of the combined capital of X1 partners. And now revaluation adjustment are completed. So in this problem, building we have taken, stock we have taken. Workman compensation, actually we have to take it into the partners capital account. We have to distribute among the partners. So 14,000 we are getting 2 items. These 14,000 we have to distribute among the old partners X and Y in their ratio. रिवैल्यूएशन का जो भी आंसर आता क्रेडिट साइड में अपने को जो भी अगर यहाँ आइटम्स रहते उसको माइनस करने का रहता, जो आंसर आता वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का जो भी कैपिटल रहता एक्स वाई का यहाँ पर अपने को क्रेडिट साइड में लेना रहता. ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक्स कैपिटल इज 10,000 एंड वाई कैपिटल इज 8,000. रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया वो वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग दिस पार्टनर. जनरल रिजर्व फंड जो भी रहता ओल्ड पार्टनर्स का रहता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिए अपने को बैलेंस शीट में वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना. सो वॉट एवर द पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू रिमेंबर दैट ऑल्सो.
It's clear? Not only general reserve, profit and loss account and reserve fund if it is given, that also you have to distribute here. Premium for goodwill 10,000. Now goodwill, what it has given in the Z was bring further cash. This is given the further share. So prepare evaluation account, capital account, bank balance sheet consideration. So since X यहाँ पर in the working note you see calculation of sacrificing ratio. Old ratio is 3:2. New ratio is 2:1. It has given 2/5, 2/5, 1/5. So new ratio, sacrificing ratio, how we will get it? Old ratio minus new ratio. So since X sacrificing 1/5, Y sacrificing is 0. So out of profit sharing, the amount premium of goodwill 10,000 will be received by X only. बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स अपने को यहाँ पर ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दिए, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपने को वाई का 0 आ रहा है, इसलिए गुडविल एक्चुअली अपन नॉर्मल प्रॉब्लम्स में गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते. ठीक है, यहाँ पर अपने को न्यू रेशियो भी दे दिए, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो देख लिया हम. अगर वाई का 0 आ रहा तो गुडविल सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ एक्स को यहाँ पर देना है. इट्स क्लियर नो? सो आफ्टर डूइंग द टोटल वी गॉट दिस बैलेंस. नाउ इन by balance brought down, by cash in Z capital 12,000, to balance brought down, that's all. In the new partner we have to write that much only. Cash account बनाना है, by balance brought down. कैश अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करना रहता, जो क्वेश्चन में कैश दिए अपने को वो कैश ले लेना है. जेड कैपिटल 12,000 न्यू पार्टनर ला रहे, सो एंड गुडविल, सो टोटल 31,000 कैश वी आर गेटिंग. अब बैलेंस शीट इज सो सिंपल, ये क्वेश्चन को सामने रखना है अपने को. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 2,000 करना है अब. ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स कुछ भी नहीं करे अपन, एज इट इज ले लेना है. जनरल रिजर्व ऑलरेडी वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड. कैपिटल्स एक्स वाई जेड, दिस आंसर व्हाट वी गॉट इन द कैपिटल अकाउंट. नो, कैपिटल अकाउंट में जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर अपने को लेना रहता. ठीक है, कैश इन बैंक जो बैलेंस आया अपने को कैश का 31,000 वो लेना है. स्टॉक इंक्रीज करे सो 16,000. ठीक है, इंक्रीज ऐड करके लेना है. प्लांट एंड मशीनरी वी हैव नॉट डन एनी चेंजेस. 10,000 प्लांट एंड मशीनरी जो भी ओल्ड बैलेंस शीट में है एज इट इज ले लेना है वो. देन लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज करे सो डेटार्स की वैल्यू एज इट इज. इट्स क्लियर नो? नाउ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर इवैल्यूएशन एडजस्टमेंट 39,200 प्लस 20,316, टोटल 60,000 आ रहा. ठीक है, 20/100 करे तो बैलेंस जो भी आ रहा दैट इज द जेड कैपिटल हियर 12,000. How we got the Z capital? Z capital is not given in the question. So we have it has given in the adjustment ना. combined capital लेना है उन लोगों का 20%. तो adjustment यहाँ पर करने के बाद ये जो भी आंसर आता है उन लोगों का अपने को दो का 39,000, 20,800 ये दोनों को ऐड करके 20% करे तो अपने को Z का कैपिटल आ रहा. ठीक है, the Z capital that's why we are taking it as 12,000. It has not given in the problem. If it is not given, combined if it is given, you have to find like this. Otherwise, if it is given in the question, directly you have to take it. It's clear no? Now next move to question number 10th. The partnership between Sachin and Mahesh. So I am going okay, the partnership, this is the 10th question. A or B you have to attempt. The partnership between Sachin and Mahesh was dissolution of partnership. This is 31st March 2020. On that 2020, on that date the respective credit to the capital were Sachin 1 lakhs and Mahesh 60,000. Bills payable and sundry creditors the firm 15,000, 30,000 respectively. The Ashish represented by the above realized 1,60,000. The assets represented by the above realized is 1,60,000. The expenses of the realization were 3,000. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm with necessary working. So ये realization account है, dissolution of the firm. Realization account में क्या करना रहता है अपने को? assets की पहले जो भी book value है, so sundry assets it has given as 2,05,000 and bank expenses is 3,000. And bank liabilities discharge is 45,000. So how sundry liabilities is 30,000, creditors bills payable 45,000 they have to pay. No, पहले liabilities क्या पे कर रहे हैं उन लोगों को 45,000 पे करना है, वो liabilities को discharge कर देना, 45,000 पे कर देना. ठीक है, बैंक assets कितने हैं उन लोगों के, the respective such in one the bills payable respectively the assets realized value 1,40,000. Realization value of the assets is 1,40,000 it has given.
and expenses 3,000 it has given. So loss on the bank expenses 3,000 it has given. To sundry asset, the assets total value is 2,05,000. So from there they have realized is for 1,60,000. सो जो भी आ रहा लॉस आ रहा वो लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. सो रियलाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, मेन पॉइंट, एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू रहती वो डेबिट साइड में लेने का रहता. ठीक है, एसेट्स की जो भी बुक वैल्यू रहती वो आपको डेबिट साइड में लेने का है, और उसका जो पेमेंट आता अपने को सेल करे सो क्रेडिट साइड में. लायबिलिटीज की जो भी बुक वैल्यू, लायबिलिटी जो पे करना है लोगों को 15,000 30,000 वो पे करना जो है क्रेडिट में दिखाना है. टू बैंक बोल के उसको डेबिट में लेने का है. इट्स क्लियर नो. सो लॉस जो भी आ रहा लोगों को यहाँ पर जो है सो लॉस दे आर गेटिंग 40,000. So 1/2 we have to distribute among them. If it ratio if it is not given equally we have to distribute. Next, partners capital account by balance brought down. जो भी लगा रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड में आ जाता है, ये बैलेंसिंग फिगर है. एंड देन बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बैंक 1,60,000 जो अपने को बैंक का एसेट्स का यहाँ पर आता है बैंक अकाउंट में वो डेबिट में ले लेना. लायबिलिटीज के जो भी एक्सपेंसेस वो रहते हैं वो क्रेडिट में ले लेने हैं अपने को. सो रियलाइजेशन लायबिलिटीज एक्सपेंसेस, सचिन कैपिटल 70,000, महेश कैपिटल 42,000. हाउ वी गॉट दिस 2,05,000 it has not given opening assets. For that we have to prepare memorandum balance sheet. If opening stock is not given, sundry creditors, bills payable दोनों का कैपिटल मिला है तो जो भी हो रहा वो आपका जो है सो सन्ड्री एसेट्स हो जाता. 2,05,000 जो अपन यहाँ पर ले रहे वो अपने को एसेट्स की वैल्यू नहीं दी अपने को. ठीक है, कैपिटल दे दिया उन लोगों का और लायबिलिटीज के क्रेडिटर्स वो दिए, वो पूरों को ऐड कर लेना. बिकॉज एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी नो. सो यहाँ पर एसेट्स लायबिलिटी जितना भी रहा एसेट्स उतना रहता. उसके लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए अपन. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं दी अगर तो यहाँ पर अपने को इक्वली शेयरिंग रेशियो करने का है. ठीक है, देन 70,000 42,000 76 दिस आंसर 1 लाख टू बैंक. रियलाइजेशन अकाउंट में अपने को क्या लिया अपन यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन जो भी लॉस आ रहा 30 30,000 and 18,000 realization loss it has given wrong. So 70,000 42,000 actually we are getting the answer. So this will tally. बैंक अकाउंट जो है आपका टैली हो जाता. ठीक है, डिसोल्यूशन में आपको क्या पॉइंट्स याद रखना है, कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो, नॉट ओनली दिस प्रॉब्लम, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू गेट इनटू द एग्जाम, बेसिक पॉइंट्स दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले आपको एसेट्स की वैल्यू लेना रहता. अगर एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिए तो मेमोरेंडम अपने को लायबिलिटीज की जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेके मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है. पूरा टोटल कर लेने के बाद जो भी आंसर आता है वो एसेट्स की बुक वैल्यू हो जाती है. अगर एसेट्स की बुक वैल्यू क्वेश्चन में दिए तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं आप. ठीक है, ये प्रॉब्लम में नहीं दिए इसलिए अपन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिए. फिर एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज जो भी डिस्चार्ज कर रहे लोग, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड लेते, बुक वैल्यू को, पेमेंट को डेबिट साइड में लेते, एसेट्स की बुक वैल्यू को डेबिट में लेते, जो भी आंसर आ रहा सेल करे सो वो क्रेडिट में लेते. सो लॉस दे आर गेटिंग. सो दिस लॉस दिस इज 30,000 एक्चुअली. वो लॉस को अपने को यहाँ पर क्या करना है, फिर इधर डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस को यहाँ ला लेना है. बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्वेश्चन में जो 1,60,000 दिए वो ले लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. जो भी आंसर आता है वो टू बैंक बोल के लिखना. ठीक है, वो आंसर को आपको फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट में क्या करना है, जो भी अपने को यहाँ पर पहले बैलेंस शीट में बैंक बोल के जो क्रेडिट में लिए वो डेबिट में ले लेने का है. डेबिट में जो लिए वो क्रेडिट में लेना है. एक्सपेंसेस लायबिलिटी एंड सचिन और महेश का कैपिटल ये टैली हो जाता. दैट्स ऑल. बैलेंस शीट नहीं रहती डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में. It's clear no? Now next I am discussing one topic only so that you will get the idea how to attempt all the units. Okay, so in the third unit bonus share theory you learn guidelines issued by the SEBI. So this is the important answer. You learn it. What is bonus share? What are the guidelines by SEBI for issued of bonus shares? It's clear. This is the theory question, you learn it. Now B question we'll see. On April 1, 2020, the directors of Manasa Company Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each of 13 per share payable of rupees 6 on application including premium and allotment. Balance on October 2020 application to 1,20,000 shares were received. On the 80,000 were returned and the exceed of the application money was utilized in the part payment of the allotment money. So ये चैप्टर के लिए आपको बेसिक जनरल एंट्रीज याद रखना है. ठीक है, जनरल एंट्रीज लिखना रहता इसमें अपने को. वन एप्लीकेंट होम
100 shares has been allotted, failed to pay amount due on call and his shares were forfeited. तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स जब इशू करते कोई भी कंपनी में तो अपने को 4 चीजें रहते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रहता, अलॉटमेंट रहता, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसके 4 के एंट्रीज अपने को एक ड्यू की लिखना रहता और एक जो है सो जो भी अपने को पेमेंट कर रहे वो एंट्री लिखना रहता, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। टोटल 8 एंट्री रहते, लेकिन अगर कोई एक कॉल फेल हो गया तो फोरफिटेड कर लिए तो वो एक एंट्री कम होती। इट्स क्लियर नो? क्या क्या रहते अपने को? एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के एंट्रीज पास करना रहता अपने को। इट्स क्लियर नो? सो बोनस बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन, पहले अपने को एप्लीकेशन आ जाते हैं ना, जब अपन इक्विटी शेयर्स इशू करें तो पहले अपने को पैसे आते, एप्लीकेशन फॉर्म देते। आप कॉलेज को गए अगर एडमिशन लेने के लिए तो पहले आप एक फॉर्म लेते, वहां से पेमेंट कर दे। तो वैसे यहाँ पर कंपनी में भी पहले जब एप्लीकेशन देते हो लोग पब्लिक को तो लोग उनसे पैसे लेते हो लोग फॉर्म के। तो एप्लीकेशन का एक रेट कितना है, कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे लोग? 1,20,000। एक एप्लीकेशन का रेट 6 रुपीज है, सो 7,20,000 पहले एप्लीकेशन के पैसे आ रहे बोल के लिखना है अपने को। बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर एप्लीकेशन के जो 7,20,000 आए उसमें से 1 लाख एक्चुअली कंपनी 1 लाख की शेयर इशू करना चाह रही, जो एक्सेस बढ़ के है वो लोग जो है सो शेयर प्रीमियम को ट्रांसफर कर रहे। तो यहाँ पर जो है सो 1 लाख शेयर जो है 3 रुपीज शेयर कैपिटल को 3 रुपीज से जो है सो यहाँ पर ट्रांसफर करना रहता है। एक्चुअली कंपनी कितने करना चाह रही और एप्लीकेशन का रेट एक्चुअल कितना है, ठीक है, वो अपने को लेने का रहता है यहाँ पर। सो 13 पेएबल ऑफ ₹6 एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो एप्लीकेशन में जो 6 रुपए है उसमें प्रीमियम के भी पैसे 3 रुपीज है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलग एंट्री लिखना, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन टोटल 7,20,000 आ गए। शेयर कैपिटल को जितने इन लोगों को ट्रांसफर करना है, जितना एक्चुअल रेट है वही ट्रांसफर करना शेयर कैपिटल को, ठीक है। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज। जो एक्स्ट्रा लोग प्रीमियम के है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अलग से दिखाना 3 लाख। शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ले रहे लोग 40,000 रुपीज एंड टू बैंक 80,000 रुपीज रिटर्न कर दे रहे। शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को जो है सो लोग रिटर्न भी कर दे रहे। 80,000 इट हैज गिवन नो कैश रिसीव 80,000 वॉज रिटर्न्ड, ठीक है। इसमें से क्या कर रहे लोग? 3 लाख जो है इक्विटी शेयर को ट्रांसफर कर रहे, 3 लाख जो है सो शेयर प्रीमियम के है, 80,000 जो है ना आपके बैंक को रिटर्न कर दिए, बाद जो बच रहे वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे। इट्स क्लियर नो? नाउ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू नेक्स्ट ये शेयर एप्लीकेशन के 2 एंट्री हो गए। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, अब यहां से जो भी लिखते हैं पहले कैपिटल को ट्रांसफर कर देना। 1 लाख 3 रुपीज अलॉटमेंट का रेट है, 3 लाख रुपीज। नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू 40,000 ऑलरेडी अपने को आगे ना यहाँ पर एडजस्ट कर लिया अपन, तो 3 लाख में से अब खाली शेयर अलॉटमेंट के 2,60,000 रुपीज आना है। तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट 2,60,000। देन शेयर फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल हुआ उसमें, टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 रुपीज है उसका रेट, 4 लाख रुपीज। नाउ बैंक अकाउंट डेटा टू, इसमें से जो है सो एक जने 100 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो 199,900 शेयर्स ही अपने को यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो रहा इंटू 4 रुपीज से 3,99,000। अब जो 100 शेयर्स के 4 रुपीज से पैसे जो नया आए 1,000 शेयर्स के, वो क्या करना रहता अपने को? शेयर फोरफिटेड कॉल अकाउंट 100 इंटू 400 जो है सो जो अपन एक्स्ट्रा आए उसमें एडजस्ट कर ले रहे अपन। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट 6 रुपीज 600 रुपीज, ये 1,000 रुपीज को अपन यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहे, ठीक है। 1 applicant 100 shares has been allotted, failed to pay the amount due on call, his share were forfeited, उसके पैसे अपन रख लिए, ठीक है। तो शेयर फोर्फिटेड 6 रुपीज रख लिए अपन। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 रुपीज अपने को नहीं आए, फाइनल कॉल के 600 रुपीज आए, सो अपन फॉरफिट कर लिए वो। इट्स क्लियर नो? सो दिस आर द एंट्रीज यू हैव टू पास। दैट इज 4th यूनिट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द राहुल कंपनी, prepare profit and loss account statement for the year ended 31st March 2020. So some information is given to us. We have to prepare profit and loss account statement. Already you know profit and loss account expenses will be there, revenue expenses, revenue income. So like that also will be there. But in here we have to do in a format. इनका एडवांस अकाउंटिंग में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट के हिसाब से अपने को वो चीजों को सेट करने का है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मेट? पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल के सेल्स की वैल्यू लेने का रहता, ठीक है। पहले क्या लेना रहता? अगर प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स लेने का रहता, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर उसके बाद अदर इनकम्स रहता, जो भी अदर इनकम रहते हैं वो लेने का है, टोटल रेवेन्यू आ जाता।
पहले सेल्स लेना है, फिर अदर इनकम। इसमें ऐसे अपने को देखना है कि कौन से इनकम है एसएससी को, मतलब इनको मिस्टर राहुल को, और दूसरी कौन सी इनकम आ रही जिससे उनको मनी जनरेट हो रहा। तो वैसे इनकम्स को देख के अपन यहाँ पर ऐड कर लेना है, तो टोटल रेवेन्यू आ जाता उससे। उसके बाद क्या करना है अपने को, फोर्थ उसमें एक्सपेंडिचर लेना है। अब एक्सपेंडिचर में पहले एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल से आइए, ठीक है, आई एम गिविंग द हिंट, मटेरियल पहले, फिर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज, मटेरियल आ जाने के बाद एम्प्लॉइज को देना पड़ता ना कुछ, तो भी उन लोगों को सैलरीज वगैरह, तो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज से रिलेटेड अपने को क्या इन्फॉर्मेशन है वो लेना है। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू प्रोहिबिटेड फंड, दिस इज फॉर द एम्प्लॉइज, सैलरीज एंड वेजेस एम्प्लॉइज को देते अपन। देन वी विल गेट फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस से रिलेटेड मनी कहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करे, इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस बोले तो मनी, लोन वगैरह जो रहता, बैंक से जो भी रिलेटेड चीजें रहते वैसे एक्सपेंसेस को अपने को यहाँ लेने का रहता। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, तो डेप्रिसिएशन क्लियरली इट हैज गिवन, डेप्रिसिएशन यू हैव टू टेक। ये ले लेने के बाद आपको अदर एक्सपेंसेस, ये पूरे अपने को एक्सपेंसेस में आ रहे, ठीक है। अब जो भी एक्सपेंसेस बच गए वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस यहाँ पर ले लेके टोटल कर लेना है। सो व्हाट विल हैपन, ये टोटल रेवेन्यू अपने को, टोटल रेवेन्यू आ जाने के बाद ये एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, ये पूरों को ऐड कर लिए तो आपको 3,40,000 टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करे तो अपने को 2,36,000 प्रॉफिट आ रहा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना आया था, 5,76,000 आया था, उसमें से ये टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया अपन 2,40,000, सो वी आर गेटिंग टोटल प्रॉफिट। Then less the expenses of current year 50%, 2,30,000, 50 यहाँ पर provision for taxation 50% it has given, so that's why 50% we are deducting, so net profit for the year we are getting 1,18,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर आइटम्स में क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको ये क्वेश्चन पहले ये प्रोफार्मा याद कर लेना है, सो बी केयरफुल, लर्न दिस प्रोफार्मा। एग्जाम में वो कौन से भी आइटम रहने दो, ये हेडिंग्स आपको लिखे तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो पक्का मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसा मैं बोल रही हूँ आपको सेल्स लेना है, सेल्स ढूंढना है इसमें, ठीक है। सेल्स हाउ मच इट हैज गिवन, 4,50,000 सेल्स ले लिए। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में क्या आता अपने को, अदर इनकम, सॉरी इनकम, अदर इनकम क्या है, अब यहाँ पर इनकम क्या क्या दिए, इंटरेस्ट इनकम, इनकम बोल के है ले लेना है वो अपने को। डिविडेंड इनकम, इनकम बोल के मेंशन करे ना क्लियरली, रिसीव जो भी रहते, नेट गेन ऑफ सेल, सो ये पूरे इनकम है। इन्वेस्टमेंट, सो इनकम ले लिए अपन यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या है इनकम, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, नेट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड इनकम, ये 3 इनकम है ले लिए, टोटल इनकम। अब एक्सपेंसेस में पहले क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आई एम गिविंग द हिंट। जब आप एक्सपेंसेस आते हैं तो पहला एक फैक्ट्री में पहला एक्सपेंस क्या होता, मटेरियल कंज्यूम होता, ठीक है। आई एम गिविंग द हिंट नो, रिमेंबर लाइक दैट। देन उसके बाद क्या है, एम्प्लॉय के रिलेटेड अपने को एक्सपेंसेस देखना है, एम्प्लॉय के। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, अगर कहीं पर भी और पैसे इन्वेस्ट करें, लोन में, लोन वगैरह दिए अगर किसी को, तो फाइनेंस वैसे एक्सपेंसेस है अगर तो वैसा एक्सपेंसेस लेना है फाइनेंस कॉस्ट के से रिलेटेड। सो हियर व्हाट हैपन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 14,000, सो दिस वी हैव टेकन। देन डेप्रिसिएशन, रेंट, अब जो भी आइटम्स यहाँ पर अब बच गए, ठीक है, सेल ले लिए अपन, सैलरीज एंड वेजेस ले लिए, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ले लिए, डेप्रिसिएशन भी ले लिए अपन, ऑडिटोरियम रिनोवेशन नहीं लिए, वो अदर एक्सपेंसेस में ले लेना। रेंट अदर एक्सपेंसेस में, रिपेयर्स अदर एक्सपेंसेस में, इंश्योरेंस अदर एक्सपेंसेस में। आर यू गेटिंग नो, मैनेजिंग डायरेक्टर फीस, दिस इज ऑल्सो इन अदर एक्सपेंसेस। डिविडेंड इनकम ऑलरेडी ले लिए अपन, इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिए, नेट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अपन इनकम में ले लिए, वो नेट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया ना। तो लास्ट में अपने को 50% टैक्सेबल बोल के दिए यहाँ पर, तो 50% टैक्स माइनस कर देने के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता। इट्स क्लियर नो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, 13th प्रॉब्लम फ्रॉम यूनिट 5th, आई एम डिस्कसिंग दिस। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ गुडलुक लिमिटेड एज ऑन 31/2/2020 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल मालूम करना है अपने को। यहाँ पर प्रॉफिट ये जो है सो आपको बैलेंस शीट दे दिए।
ठीक है। एग्जाम में अगर आपको ये टाइप की बैलेंस शीट बनाओ बल्कि 4th यूनिट में आया, सो यू कैन टेक द हिंट फ्रॉम 5th यूनिट्स। ठीक है, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, ये पूरा अपने को यहाँ पर वही लेने के रहते हैं अगर बैलेंस शीट पूछे तो 4th यूनिट में। जस्ट आई एम गिविंग द हिंट टू यू। सो यहाँ पर 1 2 3 लिखने का ये पूरा आइडिया आपको आ जाता। 5th यूनिट का अगर क्वेश्चन है तो उसको माइंड में रखते हुए 4th यूनिट के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते एग्जाम में। नाउ नोट्स अकाउंट्स इज गिवन, ये तो बैलेंस शीट है। उसके अलावा शेयर कैपिटल इतना है उन लोगों के पास, रिजर्व एंड सरप्लस 45,000 है, एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ये जो है सो वर्किंग नोट्स में बताने का रहता। देन गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल मालूम करना है ना अपने को ये प्रॉब्लम में। सो गुडविल का मेन फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में रहता, आपको सुपर प्रॉफिट पहले मालूम करने का है, सुपर प्रॉफिट से ये इसको मल्टीप्लाई करने का है आपको। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन नो? एवरेज प्रॉफिट दे दिया अपने को 75,000 फॉर द लास्ट 3 years। फेयर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। सो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस नो। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसा मालूम करना रहता? एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट में से नॉर्मल प्रॉफिट को। नॉर्मल प्रॉफिट कैसा मालूम करते हैं अपन? कैपिटल एम्प्लॉयड में से रेट ऑफ रिटर्न इनटू रेट ऑफ रिटर्न करे तो अपने को नॉर्मल प्रॉफिट आता। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करे तो सुपर प्रॉफिट आता। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से परचेज करे तो आपको गुडविल मालूम होता। ठीक है ना? गेटिंग द पॉइंट? सो अपने को यहाँ पर लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट प्रॉब्लम में रहा तो इतना करने का रहता। अब लॉन्ग प्रॉब्लम में अपने को पहले जो है सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मालूम करना है। तो उसके लिए अपने को जो बैलेंस शीट दिए पीछे, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट दिए उसमें से जो है ना अपने को एसेट्स लेने का है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड साइकिल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एसेट्स आर गिवन नो, नॉन करंट। सो फ्रॉम देयर वी हैव टेकन investment, cash and cash equivalent, land and building, plant and machinery. So these items we have taken as assets. ठीक है, assets में यहाँ पर अपने को tangible assets नहीं लेने का है, only fixed assets and debtors, sundry debtors की value and cash and cash equivalent। ठीक है, टोटल आ जाता। इसमें से लायबिलिटीज में आउटसाइडर लायबिलिटी मतलब दूसरों को जो देने के है उन लोगों को अमाउंट, वो अमाउंट लेने का रहता है। आउटसाइडर वो तो डिबेंचर्स अपन लोन लिए, कंपनी देना है उन लोगों को वैसे। और सन्डी क्रेडिटर्स उधार खरीदे किसी के से, उन लोगों को देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो बनना कंपल्सरी रहता। तो ओनली आउटसाइडर लायबिलिटी, नोट डाउन 1 point हियर, आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है ना, वही लेने का रहता। तो अपने को यहाँ पर एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ये कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करना है आपको? आ जाने के बाद एवरेज प्रॉफिट इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन नो। एवरेज प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 25,000 का 5% 1200 आ रहा, वो माइनस करने का है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट, क्योंकि अपने को एडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट में क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। कितना है इन्वेस्टमेंट का रेट? 5% है। सो वी आर गेटिंग एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट। इसमें लेस हाफ ऑफ द करेंट ईयर प्रॉफिट, इसमें से करेंट ईयर के प्रॉफिट में से हाफ जो है सो माइनस करना है। देन यू विल गेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को आ जाता है यहाँ पर। It's clear no? Now super profit average capital employed. So that we are taking capital employed. This is capital employed minus rate of return. It has given in the question 10%. So यहाँ पर अपने को super profit 750 is the average profit after adjustment. 73,750 we got no average profit after adjustment. It's clear no? Average profit after adjustment we got this profit. Then from there what we have to do? Super profit we have to minus. Super profit rate of return we have to do into 10%. So 42,500 we are getting. So from that you have to minus that, we are getting super profit. Super profit आ जाने के बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में देते हैं आपका फाइनल आंसर आ जाता। इट्स क्लियर? वंस अगेन आई रिपीटेड। ये जो बैलेंस शीट दिया आपको, ये बैलेंस शीट में से पहले जो है ना आपको एसेट्स लेने का है। एसेट्स में क्या लेना है आपको? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये 5 आइटम्स ही लेने का रहता।
उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी लेना रहता, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में दिए तो वो माइनस करिए, तो कर देने के बाद आपको एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट आता, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट एडजस्टमेंट आ जाने के बाद उसमें से आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच वी गॉट 4,25,000, उसका 10% अपने को जो है सो कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पर आपको आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करे तो सुपर प्रॉफिट आने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करना, वी विल गेट द गुडविल। सॉल्यूशंस टू जून 2023 क्वेश्चन पेपर, यू हैव जून 2023 क्वेश्चन पेपर, दैट सॉल्यूशन टुडे आई एम discussing. This is important according to examination point of view. You will get this type of pattern. If you practice the previous year question paper, then easily you can pass into the exam. No chance of failure. So let's move. This is the theory questions you have to learn. Explain fixed capital and fluctuating capital. Explain Garner versus Murray rule. Now we will move to the problems. Ramesh was holding 100 shares of each. Fully calls up. He paid 50 on application, but failed to pay down 20 on allotment, 30 on first call. His shares were forfeited and reissued 70 per share to Dinesh. Past journal entries in the book of the company. तो हर कंपनी जब शेयर्स इशू कर दे तो उसमें क्या रहता, आपको एप्लीकेशन रहता, अलॉटमेंट रहता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल रहता थोड़े कंपनीज में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल ही रहता। तो यहाँ पर भी अपने को 3 है, एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, तो टोटल 800 रुपीज का है शेयर। एप्लीकेशन के पैसे दे दिए एक जने, 50 रुपीज पे कर दिए कंपनी को, ठीक है। 100 शेयर्स खरीदे उन्होंने, 50 रुपीज पे कर दिए, 5000 रुपीज पे कर दिए। लेकिन और जो 50 रुपीज था अलॉटमेंट के जब 20 रुपीज और 30 रुपीज फर्स्ट कॉल के जब वो नहीं पे करे, तो उनके जो पहले के जो 5000 है एप्लीकेशन के जब के, कंपनी उसको फोरफिटेड बोले तो कंपनी वो पैसों को रख लेते, रिटर्न नहीं करते। गेटिंग द पॉइंट, रिटर्न नहीं करते। अब वो जो शेयर्स आ गए कंपनी के पास, उन शेयर को कैंसिल हो गए, वो पहले के शेयर्स, वो 100 शेयर्स को अब कंपनी क्या कर रहे, फिर 100 रुपीज का एक शेयर था, वो कैसा मालूम होता अपने को 100 रुपीज का है, बल्कि 100 इज फुल्ली कॉल्ड अप इज गिवन नो, सो 100 रुपीज का एक शेयर था वो पहले। अब फिर वो शेयर्स को 70 रुपीज 30 रुपीज कम करके दूसरों को इशू कर दिए वो कंपनी। तो 30 रुपीज जो लॉस हो रहा, वो लॉस को क्या करते हैं लोग, वो जो अमाउंट फोरफिटेड रहता पहले के जो 5000 रुपीज रख लिए उसमें से एडजस्ट कर देते, ठीक है। और जो बैलेंस जो बच रहा वो अमाउंट को शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करते। इट इज क्लियर with the concept what question is given and how we have to solve the problem. So now general entries in the book of the company. General entries in the book of the company, date particulars, LF, debit रुपीज, क्रेडिट रुपीज। जनरल एंट्रीज का प्रोफार्मा अपने को नॉर्मल जैसा अपन करते हैं वैसा प्रोफार्मा रहता, ठीक है। पहले क्या करना रहता आपको, शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे, 100 रुपीज, 100 शेयर्स, 100 रुपीज का ईच शेयर 100 रुपीज का था और 100 शेयर्स थे, तो 10,000 ये जो पैसे नहीं आए ड्यू थे अपने को वो लिखने का है यहाँ पर, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं आए, 100 शेयर्स के 20 रुपीज से 2000 रुपीज नहीं आए। शेयर फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं आए, 30 रुपीज नहीं आए। शेयर फोर फीचर जो एप्लीकेशन के जो आए थे वो कंपनी जो रख ले रही उसको फोर फीचर बोलते, ठीक है। फोर फीचर कितने रख ले रहे लोग, 5000। कैसा आ रहा अपने को ये 5000 अमाउंट, 100 शेयर्स थे एप्लीकेशन के जब 50 रुपीज, 100 शेयर्स को 50 रुपीज से एप्लीकेशन के जब जो पब्लिक पे करे उनको 5000 वो शेयर फोर फीचर है, तो टोटल 10,000, ठीक है ना। पहले 100 शेयर्स पूरे शेयर की वैल्यू ले लेना डेबिट में, फिर उसके बाद जितने पैसे नहीं आए वो लेना। अलॉटमेंट के 20 रुपीज से नहीं आए 100 शेयर के 2000 रुपीज, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए 3000, 100 इंटू 300, और जो बच गए जो ले लिए पैसे कंपनी फोर फीचर करी वो क्रेडिट में लिख देना, ठीक है। 10,000 डेबिट क्रेडिट इक्वल कर देना। अब नेक्स्ट क्या करना रहता आपको, कंपनी जो इशू कर रही 70 रुपीज से कर रहे लोग, बैंक अकाउंट डेटा टू 100 शेयर्स तो पूरे 100 ईच है, लेकिन वैल्यू को कम कर दे रहे। पहले 100 रुपीज का एक शेयर था, अब 70 रुपीज से इशू कर रहे,
सो बैंक अकाउंट डेटा 7,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं खाली लोग, तो 3,000 जो लॉस हो रहा 100 शेयर के उसको 70 में कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करना, फोरफिटेड शेयर में से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 5,000 रुपये जो रखे हुए हैं ना पहले के, उसमें से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर डिस्काउंट बोल के नहीं लिखना, फोरफिटेड शेयर बोल के लिखने का रहता अपने को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये जो फोरफिटेड के अब और 2,000 रुपये जो बच गए, 3,000 ये एडजस्ट कर लिए, और 2,000 जो बच रहे वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो जब भी फोरफिटेड रहते हैं आपको 3 एंट्रीज पास करने का रहता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी कभी भी इनकॉर्पोरेट होती है उससे पहले जब उसको सर्टिफिकेट मिलता, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते। प्रीमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के स्टैंप ड्यूटी के लिए एंड रजिस्ट्रेशन फी के लिए, लीगल फीस के लिए, फॉर चार्टर्ड एसोसिएशन अकाउंटेंट के लिए जो है सो पैसे लोगों को पे करना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। जब प्रीमिनरी एक्सपेंसेस लिस्टेड इन ट्रायल बैलेंस दे शुड बी अकेयर एसेट साइड में लेना रहता है। अगर ट्रायल बैलेंस में दे रहा प्रीमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स में लेना, अगर अपने को एडजस्टमेंट्स में दे रहे वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में लेना रहता, और प्रीमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस करने का रहता। दैट यू हैव टू राइट अबाउट द प्रीमिनरी एक्सपेंसेस। नाउ एक्सप्लेन अबाउट गुडविल। This is the answer you have to learn for the theory. Now next move to the problem. Raju and Rani are partners. 2 partners हैं. This is also new profit sharing ratio. I have discussed each theory. First unit theory questions also and short problems also I have discussed, and unit wise all the questions, important questions of this SIA material I have explained, and RP Trivedi textbook problems, some problems also I have explained on my channel. So if you search in the playlist advanced accounting you will find it. If you want to score good marks with these important questions what I am discussing, with this you follow those videos also, you can score very good marks in your advanced accounting paper. You can easily attempt the paper. So what is that advanced accounting? In the playlist you go, Hikmat Learning Accounting Academy channel is there, no? In that channel only playlist you search advanced accounting, you will find the problems of advanced accounting. Important problems also I have discussed unit wise in that. Here I am discussing the question paper, no? There I have discussed unit wise important problems. So beside this, if you practice those also, you can get O grade in the exam. Now next move to next problem. A and B were in partnership and agreed to dissolve the assets realized. 80,000 में assets को सोल्व कर दे रहे लोग। क्रेडिटर्स 45,000 है, लोन 20,000 है, कैपिटल ए का कैपिटल बी का कैपिटल। सो यहाँ पर अपने को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स की बुक वैल्यू भी जरूरी रहता। कल अपन लॉन्ग प्रॉब्लम में देखे ना कि एसेट्स अगर बुक वैल्यू नहीं दी अपने को तो अपने को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना रहता। जो भी लायबिलिटीज दिए वो पूरे ले लेती हो, ले लेने के बाद अपने को जो बैलेंस आ रहा सन्ड्री एसेट्स बोल के लिखना रहता। ठीक है, वो एसेट्स की बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में लेना। जो भी एसेट्स सोल्ड कर रहे 80,000 में वो क्रेडिट साइड में आते बाई बैंक बोल के। एसेट्स की आउटसाइड लाइबिलिटी क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में लेने का रहता, और उन लोगों को जो डिस्चार्ज कर देना रहता है, क्वेश्चन में नहीं भी दिए तो डिस्चार्ज करना रहता। सो टू बैंक बोल के क्रेडिटर्स, तो बैलेंस जो आता दैट लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिट साइड अगर बैलेंस आ रहा तो लॉस है, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन इक्वली दोनों को 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना। दैट्स ऑल, दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। इन नोट यू हैव टू राइट सिंस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी आर अज्यूमिंग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नोट में ये लिख देना रहता आपको। Now next move to next problem. X Limited equi share capital compromises. X Limited एक कंपनी है, उन लोग के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है जो 100 रुपीज फुल्ली पेड कर दिए पब्लिक, और 10,000 इक्विटी शेयर्स है और एक टाइप के जिसमें सिर्फ 75 का पेमेंट हुआ। पेमेंट बोले तो समझ में आया ना आपको, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के और 25 रुपीज सपोज यहाँ पर नहीं आए अभी। ठीक है ना, तो 2 तरह के इक्विटी शेयर्स है ये कंपनी में। एक 100 रुपीज के पूरा दे दिए पब्लिक पैसे, और दूसरे 10,000 शेयर्स जो लिए वो लोग और 25 रुपीज बाकी है।
ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अपने को क्या मालूम करना है इसमें, द नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 50 लाख, कंप्यूट इंस्ट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मालूम करना है। तो पहले क्या करना है उसके लिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, एसेट्स जो नेट वैल्यू एसेट्स की जो दे दिए उसमें और जो पैसे आने का है उनको 25 रुपीज से 10,000 शेयर्स के और जो पैसे आने का है वो ऐड कर लेना। तो नेट वैल्यू ऑफ द एसेट इज 52,50,000 आ जाता। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज फुल्ली पेड अप। सो 10,000 टोटल इक्विटी शेयर अब कितने हो गए, 20,000 हो गए। 52,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 टोटल एक शेयर से मल्टीप्लाई करें तो अपने को वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर कंपनी की मालूम होती, 262 रुपीज 50 पैसा। गॉट इट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर्स, तो ये 262 जो आ जाते हैं उसमें से जो 25 रुपीज और आने का है उसको माइनस कर दिए तो आपको पार्टली पेड इक्विटी शेयर की वैल्यू मालूम हो जाती। दैट ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फुल्ली की एक मालूम कर लेना है अपने को, पार्टली एक जो फुल्ली आंसर आ जाता उसमें से पार्टली और 25 रुपीज जो भी आपको कभी क्वेश्चन में 20 रुपीज देते वो लास्ट में माइनस कर देने का रहता। इट्स क्लियर नो। नाउ मूव टू Part B. Each carry 12 marks. 5 problems you have to do in the Part B. Raghu and Raju sharing the profit in proportion 3:1. दो पार्टनर्स है रघु और राजू, 3:1 में रेशियो से उन लोग जो है उनका प्रॉफिट शेयर कर रहे। दिस इज द बैलेंस शीट गिवन टू अस। अब एडजस्टमेंट में क्या दिए, वो लोग एक नए पार्टनर रामू को जो है सो बिजनेस में एडमिट करना चाह रहे। रामू 30,000 गुडविल ला रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं और 40,000 गुडविल ला रहे हैं। ये अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाना रहता अपने को एडमिशन ऑफ पार्टनर में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या था, एसेट्स डिक्रीज हो रहे तो डेबिट साइड में, एसेट्स इंक्रीज हो रहे तो क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस हो रहा, डेबिट साइड में ले लो। परसेंटेज भी दे दी अपने को, स्टॉक का 40,000 का 10%, 4,000, फर्नीचर का 11,000 का 10%, 1100। दैट्स ऑल। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट, डेटार्स की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं ये, तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट 60,000 डेटार्स से अपने को 5% 800 ले लेना, ठीक है। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे तो डेबिट साइड में। अब यहाँ पर नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग 20% इंक्रीज बोल रहे हैं, अप्रिसिएशन भी आता आपको, ठीक है, उसको क्रेडिट साइड में लेना, 20% निकाल लेंगे। दैट्स ऑल। नाउ यू हैव टू डू द टोटल। क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस करे तो 1100 आ रहे। ये 3:1 रेशियो दिए ना, उसमें दोनों को रघु और राजू ओल्ड पार्टनर्स कुछ, ठीक है, एडमिट कर, ये पहले का पार्टनर्स कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रहता अपने को। इट्स क्लियर नो। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया ना। नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना रहता आपको, पहले बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउन बोल के जो रघु एंड राजू का जो क्वेश्चन में कैपिटल रहता, ये कैपिटल जो है सो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेने का रहता फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेने का रहता। देन बाई कैश न्यू पार्टनर जो पैसे लाए 30,000 एज गुडविल लेके आए ना, उनके कॉलम में खाली बाई कैश बोल के रामू के कॉलम में खाली उन्होंने लाए सो पैसे कैपिटल को डाल देना सेम। देन टोटल कर लेके टू बैलेंस कैरिड डाउन रघु राजू एंड रामू 44,275 वी आर गेटिंग। दिस इज 44,275। राजू क्या है वो अमाउंट 44,275, इनका अमाउंट 30,000, ठीक है। तीनों को टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिख देना रहता। एंड जनरल रिजर्व ऑल्सो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स ओनली। If reserve fund also is given, now this total we are writing as to balance carried down. समझ में आ गया ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना है अपने को, पहले क्वेश्चन में से लेना है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेना है, जनरल रिजर्व गुडविल, ये 4 चीजें। अगर रिजर्व फंड दिए तो रिजर्व फंड, ये 4 चीजें ही लेना रहता आपको, उन लोगों की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज सो सिंपल, जस्ट क्वेश्चन पेपर को सामने रखो आपके, जो भी एडजस्टमेंट अपन करे, अब क्रेडिटर्स को अपन कुछ भी नहीं करे, ऐसे लिख देना। कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आता है वो लिख देना, हो गया आपका लायबिलिटीज आ गया। एसेट साइड में क्या करना है आपको, कैश एट बैंक, जो क्वेश्चन में अपने को कैश है उसमें नए पार्टनर जो लाए सो पैसे और गुडविल दोनों को ऐड करके डाल देना, क्योंकि अब पैसे बढ़ जा रहा ना बैंक बैलेंस,
पहले 22,500 था, अब न्यू पार्टनर और 30,000 ला रहे, 40,000 गुडविल ला रहे, तो बढ़ जा रहा 92,500 हो जा रहा नई बैलेंस शीट में। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल को कुछ भी नहीं करे अपन, ऐसे लिख देना। डेटार्स को जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आइटम्स लिए थे अपन परसेंटेज निकाल के वो माइनस कर देना है। जैसा आप फाइनल बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन, डेटार्स में, बैड डेब्ट्स में मैं कैसा माइनस करके डालते हैं, सेम वैसी। ठीक है, स्टॉक को माइनस कर देना, फर्नीचर को भी माइनस कर देना, डिप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएशन जो रहता, इंक्रीज जो वैल्यू रहती जो क्रेडिट साइड में रहते उसको ऐड करके डाल देना। नाउ योर बैलेंस शीट विल टैली। नाउ नेक्स्ट मूव टू P and Q sharing. This is the next unit. Question number 13, question number 10 I am going to discuss B problem. P and Q are sharing profit share 3:1. 3 partners है यहाँ पर। P, Q are sharing profits in the ratio 3:1. So 3 partners है ये प्रॉब्लम में। ठीक है, P, Q and R they decided to dissolve partnership dissolution। ठीक है, पार्टनरशिप को बंद कर देना चाह रहे लोग। सो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट इट इज गिवन। नाउ एसेट्स को रियलाइज कर रहे, अब बंद कर दे रहे मतलब एसेट्स को सोल्ड कर दे रहे, जो भी एसेट है उन लोग 1 लाख में सोल्ड कर दे रहे उसको, और उन लोगों की जो गुडविल है उसको 8,000 में बेच दे रहे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द फाइनल एडजस्टमेंट अमॉन्ग द पार्टनर शोइंग दैट इंसॉल्वेंट, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रहता आपको डिसोल्यूशन में। इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर उसमें से इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, जो भी क्रेडिटर्स को जो बैलेंस देने का रहता, एक पार्टनर देने के पोजीशन में नहीं रहते तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते। ठीक है, एंड ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनीथिंग, पेमेंट को डिस्चार्ज करना है तो कुछ भी नहीं ला सकते उन्होंने। सो शो द मीन्स ऑफ लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द पार्टनरशिप विल क्लोज। सो पहले एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में क्या रहता है, शॉर्ट प्रॉब्लम्स में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए ना, एसेट्स को लेने का रहता। तो एसेट्स की एसेट्स इज हाउ मच, 1,60,000 एसेट्स की वैल्यू ले लिया अपन, 1 लाख बुक वैल्यू यहाँ लेना रहता। कितने में सोल्ड करे वो, बाई बैंक बोल के एसेट्स की वैल्यू को यहाँ लेना रहता। गुडविल भी सोल्ड कर दिया, ठीक है, क्रेडिट साइड में ले लिए। लायबिलिटीज में जो है सो क्रेडिटर्स की वैल्यू लेना रहता 80,000, वही अमाउंट को टू बैंक बोल के इधर लेने का रहता। इट्स क्लियर नो। गुडविल ऑल्सो 20,000। ये इंटेंजिबल एसेट्स अगर कुछ दिए तो पहले एसेट्स की वैल्यू ले लिए अपन 1,60,000 और गुडविल को ले लिए, एंड क्रेडिटर्स की वैल्यू। अब यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड सन्ड्री एसेट्स जो डिस्चार्ज हुए वो, ये 4 चीजें आपको माइंड में रखने का रहता। एसेट्स की बुक वैल्यू, एसेट्स रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स का रियलाइजेशन, टू बैंक बोल के, इधर बाई बैंक बोल के, इतना ही रहता। जो भी आंसर आता तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये डिसोल्यूशन है, 3 पार्टनर थे, तीनों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रेशियो अपने को क्वेश्चन में है 3:2:1, 3:2:1 में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपन। समझ में आ गया ना रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में तीनों का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कभी भी याद रखिए जब अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे तो क्वेश्चन में जो रहता ना अपने को, जब अपन बैंक अकाउंट बना रहे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के इधर से स्टार्ट करना। कैपिटल अकाउंट बना रहे, उसका अकाउंट पर्टिकुलर जब ओपन कर रहे तो बैलेंस जो ट्रांसफर करते हैं अपन क्रेडिट साइड में करना। दिस इज द टिप आई एम गिविंग टू यू। सो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 30,000, 6,000 क्वेश्चन में से यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए अपन। ठीक है, जनरल रिजर्व जो था तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो लॉस जो आया वो भी जो है सो दोनों में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। फर्स्ट टू रियलाइजेशन लॉस डेबिट साइड में आता। ठीक है, अब यहां से केयरफुली सुनिए, जो रियलाइजेशन ये लॉस आया तीनों को, वो लॉस यहां पर अपन तीनों को पहले लिख दिए। ठीक है, उसके बाद बैलेंस ले लिए, रिजर्व ले लिए, यहां तक आ गया समझ में आप लोगों को। उसके बाद ये लॉस को जो रहते बाई बैंक बोल के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं उन लोगों के कॉलम में सेम अमाउंट लिख देना रहता। कॉन्ट्रा एंट्री कैसा करते हैं आप लोग 3 कॉलम कैश बुक में, वैसा रियलाइजेशन लॉस को यहां पर लिख देना रहता। ठीक है, किसको, सॉल्वेंट पार्टनर्स को खाली 36,000, 24,000। समझ में आ गया ना यहां तक। अब जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डेफिशिएंसी मालूम करने का रहता। डेफिशिएंसी इन शॉर्ट ऑल्सो यू विल गेट। सो गार्डनर वर्सेस मुर्रे जो शॉर्ट आंसर आपको पूछ रहे 4 मार्क्स में, वही है। इंसॉल्वेंसी में जो भी डिफिशियंसी मालूम करना रहता, इंसॉल्वेंट पार्टनर जो रहते ना वो लोग जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना रहता
अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो। ये आंसर के इस बारे में आपको थियोरी में लिखना है, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल में। इंसॉल्वेंट अगर कोई पार्टनर हो गया तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रहते उन लोग क्या करना रहता, कैपिटल शेयरिंग रेशियो लोगों का जितना भी कैपिटल है उसका रेशियो निकाल के इनको जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, अब ये 12,000 में से ये 8,000 माइनस कर देना क्रेडिट। अब यहाँ बैलेंस जो आता है इनका 4,000, वो 4,000 को इन लोगों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना रहता। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, वीडियो को पॉज करके 2-3 times you listen this what I am explaining. I am explaining in a clear way. This is the important problem. That's why I am focusing and I am insisting you to watch 2-3 times. Insolvency of the partner, Gardner versus Murray. That also you understand the topic here. So total 16 marks you can get it with this problem. इट्स क्लियर नो। तो यहाँ पर अपने को पहले उनका कैपिटल का रेशियो निकाल लेना है, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4,000 को। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूट करते जो अमाउंट आता वो अमाउंट को क्या बोल के लिखना रहता आपको यहाँ पर, बाई पी कैपिटल। पी का जितना भी रेशियो आया 4,000 इंटू 2/3 you do, you will get 2,667. 4,000 into 1/3 you do, you will get 133. तो P के कैपिटल में B के कॉलम में पीस कैपिटल बोल के यहाँ पर पर्टिकुलर्स में, C के कॉलम में 2,667 लिखना, ठीक है। Q के कैपिटल में 133 लिखना। फिर ये सब अमाउंट कॉन्ट्रा एंट्री फिर बन जाता, इधर आ जाता वो। इधर आ जब क्या करना, टू आर्स डेफिशिएंसी बोल के P के कॉलम में 2,667, Q के कॉलम में 133। ये 4,000 को फिर दोनों तरफ भी आपको लिखने का है कैपिटल के रेशियो में निकाल के। दैट्स ऑल, सो सिंपल नो। नाउ अब इन लोगों का तो जो भी पार्टनर्स रहते हैं जस्ट इन लोगों को टोटल कर देने का है आपको, एंड बैलेंस को टू बैंक बोल के लिख देने का है यहाँ पर दोनों पार्टनर्स का। अब बैंक अकाउंट में आ जाओ। बैंक अकाउंट आई टोल्ड यू नो, जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक अपने को जो है सो क्रेडिट में है। जब उसका अकाउंट अपन ओपन करते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के अपने को यहाँ पर आ जाता वो। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम में अपने बैंक बोल के लिए ना, रियलाइजेशन में अपन इधर साइड लिए थे बाई बैंक बोल के, एंड डेबिट साइड में टू बैंक बोल के लिए, वो बैंक के अकाउंट में अब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में लिख देना है, ठीक है। जो बैंक एसेट्स का रहता 1,08,000, क्रेडिटर्स का 82,000। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट में जो अपने को आया था बाई बैंक, वो भी इधर लिख लेना है, 2 पीस कैपिटल 2 क्यू कैपिटल बोल के। फिर यहाँ पर जो बैलेंस आया था वो बैलेंस को इधर लिखना रहता, बाई पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल। बैंक अकाउंट आपका टैली होता, टैली हुआ तो समझना आप ये रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेक्ट करें आप। जैसे अपनी बैलेंस शीट टैली हुई तो अपने को श्योर होता ना कि प्रॉब्लम करेक्ट गया, वैसा आपको डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में आपका बैंक अकाउंट ये टैली हो जाना। क्या लेना है, बैंक जो अमाउंट क्वेश्चन में दिए सो, रियलाइजेशन के एसेट्स का, रियलाइजेशन के क्रेडिटर्स का पेमेंट करे सो, और यहाँ पर जो भी कैपिटल क्रेडिट में जो बैलेंस आता पी का क्यू के कॉलम में, एंड डेबिट में जो आता वो, बस इतने चीजें लेने के बाद आपका बैंक अकाउंट जो है सो टैली हो जाता। इट्स क्लियर नो। नो नेक्स्ट मूव टू प्रॉब्लम नंबर 11। सो चंद्रा कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर। एक चंद्रा लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी जो है ना 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रहे पब्लिक को। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10 ईच, 10 रुपए है एक शेयर की वैल्यू। उसको लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन के जब 4 रुपीज पूछते पब्लिक को, ठीक है। 1 लाख शेयर्स दे रहे, लेकिन उस एक वैल्यू शेयर की 10 रुपीज है। वो 10 रुपीज को क्या करते कंपनी डिवाइड कर देते हुए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 4, फाइनल कॉल के 2 रुपीज में, ठीक है। एप्लीकेशन के 4, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ऐसा उसको डिवाइड कर देते। तो आपको क्या है, बेसिक 6 एंट्री रहते इसके अंदर, ठीक है ना। एप्लीकेशन के 2 एंट्री रहते, अलॉटमेंट के 2 एंट्री रहते, फाइनल कॉल के 2 एंट्री रहते। अब उसके अलावा यहां पर क्या हो रहा, पूरे पैसे अगर आए तो 6 एंट्री रहते आपको। नाउ वी विल सी व्हाट हैपेंड हियर। द एक्चुअल सब्सक्रिप्शन वाज ओनली 90,000। इन लोग कंपनी 1 लाख के शेयर्स इशू करना चाह रही थी, लेकिन पब्लिक अप्लाई खाली 90,000 के करे। तो अपने को प्रॉब्लम में 90,000 से मल्टीप्लाई करना रहता, 1 लाख को भूल जाना रहता, ठीक है। कंपनी कितने करना चाह रही थी वो नहीं देखना है अपने को। 90,000 के एप्लीकेशन के पैसे आए अपने को, अब प्रॉब्लम में 90,000 कुछ आपके माइंड में रखना है आपको, ठीक है ना। by shareholders was received except from all the money payable by shareholders was received except from सुधाकर। एक एप्लीकेंट है सुधाकर, उन्होंने जो है सो 1000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए।
बट फेल टू पे द फाइनल कॉल, वो भी फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए उन्होंने। ही शेयर्स, उनके वो पैसे जो भी उन्होंने एप्लीकेशन को अलॉटमेंट को जो दिए थे वो पैसे कंपनी रख लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट, यहां तक दे दिए उन्होंने, 2 रुपए बाकी थे खाली, जब नहीं दिए तो कंपनी जो है सो एप्लीकेशन के जब दिए सो पैसे, अलॉटमेंट के जब पैसे दिए ना जो, वो पैसों को जो सो कंपनी रख ले रही, उसको फोरफीटेड बोलते। फिर क्या कर रहे कंपनी, वो उनके 1000 शेयर्स जो थे वो दूसरों को री इशू कर दे रहे। प्रभाकर को 10 रुपए का एक शेयर था ना, अब खाली 6 रुपए में दे रहे उन्होंने, तो 4 रुपए जो डिस्काउंट हो रहे हैं, जो फोरफीटेड कर लिए, उसमें से एडजस्ट कर लेते। अब भी ये प्रॉब्लम में अपन जो शॉर्ट में करें ना 3 एंट्रीज, वो 3 एंट्रीज फिर यहाँ पर आपको आ जाते, तो टोटल आपके 9 एंट्रीज पास करना है आपको। समझ में आ गया ना। इट्स सो इजी, इक्विटी एंड दिस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इट्स सो इजी। ये 9 एंट्री में पूरा चैप्टर खत्म होता। व्हाई यू पीपल डिडंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को अपने को समझने का है कि कंपनी में रियलिटी है, ये शेयर्स इशू करते, उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल में डिस्ट्रीब्यूट करते वो लोग, कुछ पैसे नहीं आए तो वो रख लेते, फिर री इशू करते, जो भी बैलेंस बच जा रहा वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते। बस इतनी कहानी है, ठीक है ना। लाइक ए स्टोरी, यू इफ यू लर्न, यू whether it is a account subject or whatever, it may be income tax, anything, advanced accounting, corporate accounting, anything, you can understand in a better way if you enjoy to learn the subject. If you want to get the deep knowledge of the subject, then only you can score very good marks. No chance of failure in the exam if you attempt all the 5 units, if you try to understand all the 5 units, what is the concept we have to learn in the 5 units, then every exam you will pass. I did double PG, I did MCom, I did MBA, I also wrote semesters only in the PG, but I never had a doubt of my result that whether I am going to fail or not, because the basic things as a student we should know that we will pass if we learn whatever the concept is giving to us to learn. If we are not learning that only, then examiner will fail us. It's clear, no? So learn like a story. So show the journal entries in the books of a company. So बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर एप्लीकेशन, पहले पैसे आ जा रहे ना एप्लीकेशन इशू करते कितने आ रहे हैं उन लोगों को पैसे, 90,000। कीप इट इन द माइंड, डोंट डू द मिस्टेक ऑफ 1 लाख। कंपनी चाह रही थी 1 लाख इशू करना, लेकिन पब्लिक खाली 90,000 को अप्लाई करी, तो अपने को 90,000 से मल्टीप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो अमाउंट इस लेना यहाँ पर 4 रुपीज, सो 33,60,000। ये शेयर एप्लीकेशन के जो अमाउंट आते हैं उसको शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना रहता, ठीक है। कहां पर ट्रांसफर करना, एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000 ट्रांसफर कर दिए अपन। अब शेयर अलॉटमेंट को पहले यहां पर, अब यहां से क्या होता, पहले कैपिटल को ट्रांसफर करते, फिर बैंक आए सो पैसे लिखना रहता अलॉटमेंट में, और जो है सो आपके फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में रिवर्स रहता, ये 2 एंट्री रिवर्स हो जाती। फर्स्ट एप्लीकेशन में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, लेकिन शेयर अलॉटमेंट में क्या हो जाता, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, वैसा अपने को जो है सो रिवर्स हो जाते ये 2 एंट्रीज। गॉट इट, नो। शो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेटा टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट का प्राइस कितना है, 1 लाख इंटू 4 रुपीज, अगेन 3,60,000 ओनली। अलॉटमेंट के तो पूरे पैसे आ गए ना, तो बैंक अकाउंट डेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,60,000 सेम अमाउंट। समझ में आ गया ना 4 एंट्रीज। तो अब फर्स्ट कॉल में क्या हुआ देखिए, शेयर एंड फर्स्ट फाइनल कॉल को पहले तो कितने का बैलेंस बचा, अब 2 रुपए का, 1 लाख इंटू 90,000, सॉरी आई एम ऑल्सो डूइंग द मिस्टेक, 90,000 ओनली वी हैव टू कंसिडर, 90,000 इंटू 2 रुपीज, सो 1,80,000 शेयर कैपिटल को पहले ट्रांसफर कर देना, ड्यू है इसके पैसे बोल के। लेकिन अब आ रहे कितने पैसे वो लिखने का अपने को, 2 रुपीज नहीं पे करे ना मिस्टर सुधाकर, नहीं पे करे 1000 शेयर्स के पैसे, तो 89,000 शेयर्स के पैसे इनको आए अपने को 2 रुपीज से 1,78,000। समझ में आ गया ना। अब उसके बाद 3 एंट्रीज क्या रहते हैं आपके, जो अपन फर्स्ट शॉर्ट प्रॉब्लम में करे ना अपन, वो है शेयर फाइनल कॉल, पहले 1000 शेयर्स के जो पैसे नहीं आए, 10 रुपीज का एक शेयर था वो लिख देना रहता डेबिट में, ठीक है। 1000 शेयर्स के पैसे नहीं आए, सो 110 रुपीज से पहले पूरे शेयर की वैल्यू लिखने का रहता आपको, ठीक है ना। कीप इट इन द माइंड, डेबिट साइड में। अब 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो पैसे नहीं आए इनको 2000 नहीं आए,
आए कितने थे कंपनी को, 8000 आए थे। वो 8000 को क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफिटेड बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं उसको, शेयर फॉरफिटेड। वो 8000 रुपीज अपन रख लिए यहाँ पर। अब क्या करें इसको, फिर ये 1000 शेयर्स को मिस्टर प्रभाकर को इशू करें। नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बैंक अकाउंट डेटार इशू करे तो उनको 6 रुपए से करे। तो 1000 रुपीज से 6 रुपए के प्रभाकर कितने पैसे दिए कंपनी को, 6000 दिए। 4000 कंपनी को कम जो आ रहे, डिस्काउंट जो रहता वो डिस्काउंट को अपन यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर बोल के लिखने का रहता। क्या लिखना रहता, फॉरफिटेड शेयर्स। सो 6000, 4000, 10000। अब ये जो 8000 रख लिए, उसमें से 4000 डिस्काउंट के एडजस्ट कर लिए और 4000 रुपए बच गए ना कंपनी के पास। वो जो है सो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेटा टू कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना। इट्स क्लियर नो? ऑल द बेस्ट. Today's topic is very important. You can score very good marks in the question. You may get this type of questions only into the exam.